Hello student, how are you? So welcome in your today's lecture. Today's lecture is pregnancy and embryogenesis, embryonic development, and second is parturitions and lactations. So before we start this uh, today's topic, we just discuss previous point. In previous point, you have read menstrual cycle and the different segments of menstrual cycle, where you have read menstruation phase, follicle phase or proliferated phase, ओबिलेटरी फेज, ल्यूटल फेज और सिक्रेटरी फेज। और ये तीन फेज ऐसी हैं जो कि पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग तक का जो बीच का पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, which we have already discussed in previous class, like FSH hormone, LH hormone, then FSH hormone, follicle stimulating hormone, LH hormone, luteinizing hormone, then corpus luteum, it's produce एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरॉन, और ये पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इफ़ प्रेगनेंसी यदि कंफर्म होती है तो सम स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स वर्क करते हैं जो एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक करने लगते हैं। और यदि प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू जो एंडोमेट्रियम है वो स्मॉल सेगमेंट्स और ब्लड वेसल्स के फॉर्म पर मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म पर बाहर आ जाती है। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ menstruation cycle. And now today's topic is fertilization, pregnancy and embryogenesis. So I will just discuss one or two points about fertilizations. In fertilization, the process of fusion of sperms and the ovum is called fertilization. We have discussed already in previous period. Then after that, implantations, fertilizations में a complete and very nice diagram given in NCERT. It is ovum, mature ovum, which is covered by the two type of layers. First one is cell of corona radiata. Second one is zona pellucida. So zona pellucida and cell of corona radiata. और जो स्पर्म्स होता है वो एक्रोसोम्स के हेल्प से जोना पेलिसिडा को इम्बेडेड करके और एक अपना हेड उसमें इम्बेडेड कर लेता है। देन जैसे ही स्पर्म्स का हेड एंटर हुआ, एक विटलाइन, प्री विटलाइन स्पेस फॉर्म हो जाती है। इट मीन्स कि नो अदर स्पर्म्स कैन एंटर इन ओवम। विटलाइन मेम्ब्रेन्स का बनना क्या शो कर रहा है कि अब इसमें दूसरा स्पर्म सेंटर नहीं हो सकता है। सो वी विल डिस्कस दिस pregnancy and embryonic development in detail. So start today, now just start our lecture. Pregnancy and embryonic development after implantations. Implantations process क्या है? Implantations में zygote form हुआ, then 2 cell structure, then after division 4 cell structure, then 8 cell structure, and after 8 cell structure morula is formed. Then morula is just pass through isthmus and enter in uterus, where it is just attached to uterine wall. It is called as implantations, which we have already discussed in previous period. Now pregnancy and embryonic development. After implantations, finger-like projections appear on trophoblast called chorionic villi. क्या टर्म दिया है ये? chorionic villi, which are surrounded by uterine tissues and maternal blood.
ठीक है। ये जो कोरियोनिक जो विली है, एक प्रकार से ये क्या फॉर्म करेगी, अल्टीमेटली ये प्लेजेंटा फॉर्म करने में हेल्प करेगी और फिटस को क्या देगी, फूड सप्लाई करेगी, ठीक है। विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, मतलब जो मैटरनल ब्लड भी इसको इसी से ही मिलेगा और मदर के ब्लड से ही ये पूरा फिटस जो है क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। द कोरियोनिक विली एंड द यूटेराइन टिश्यू बिकम interdigested which each other join a structural and functional unit between the developing embryo is called placenta, ठीक है। प्लेजेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यूज़ में भी यू हैव रीड प्लेजेंटा, ठीक है। जो प्लेजेंटा चैम्बर बन रहा है, प्लेजेंटा जिससे कि ओब्यूल जो है अरेंज होते हैं ओवरी वॉल पर, लाइक सेम कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग। जो कोरियोनिक विली है और यूटेराइन टिश्यूज़, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होके और एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो फिटस को और डेवलपिंग फिटस को मैटरनल बॉडी से अटैच करता है, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेजेंटा। क्लियर स्टूडेंट, प्लेजेंटा अक्सर आता है और डेफिनेशन ऑफ प्लेजेंटा। नाउ सेकेंड पॉइंट, द प्लेजेंटा फैसिलिटेट द वर्क, इट इज़ फंक्शन और वर्क। क्या है फंक्शन? द प्लेजेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ठीक है। सेकेंड, एंड इट्स ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। मीन्स प्लेजेंटा क्या कर रहा है, जितना भी फूड है और ऑक्सीजन है वो मदर ब्लड से फिटस को प्रोवाइड कर रहा है और फिटस से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर्म हो रहा है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, उसको फिर रिटर्न मदर ब्लड पर अगेन वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू, नाउ प्लेजेंटा एम्ब्रियो से किस तरीके से कनेक्टेड है, प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अ umbilical cord. Now read this term, umbilical cord. And during childbirth, this umbilical cord is come out with fetus, ठीक है, come out with fetus during the birth of young ones. Clear student? ये जो umbilical cord है ये young ones के साथ birth के थ्रू बाहर आती है, ठीक है। which help in the transport of substance and to form embryo. इसका क्या काम है umbilical cord का, ये सब्सटेंस का जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उनको मदर ब्लड से फिटस में लाना और वेस्ट मटेरियल को फिटस से मदर ब्लड पे डालना, ठीक है। प्लेजेंटा सेकंड वर्क है, फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट। सेकंड फंक्शन, प्लेजेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन टिश्यूज़ के तरीके से वर्क कर रहा है, मीन्स कुछ हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और विच प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है प्लेसेंटा से, इट इज़ कॉल्ड एज HCG, H ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, और ह्यूमन ये क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और एक और दूसरा हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल, ये क्या है, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, clear student? Estrogen, progesterone, so this is the some hormone which is secreted by placenta. The placenta work as a endocrine tissue and the write the name which endocrine which placenta secret, it is HCG human, and second one is HPL human placental lactogen, third one is estrogens and progesterone.
एस्ट्रोजेंस। ये हॉर्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी रिलीज होते हैं अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे, विच वी हैव डिस्कस। बट ये जो है प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली जो बर्थ है और प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन, cortisol, prolactin, thyroxine are increased. Now ये कभी कभी क्वेश्चंस पुट अप होता है, राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स which hormones have high level during pregnancy. तो कौन कौन से हार्मोन्स का हाई लेवल होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स अ रीज़न कि ये ज़्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, और ये क्यों ज़रूरी है? ये हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, सो इट्स टेक इम्पोर्टेंट पार्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ। प्रेगनेंसी के लिए और फीटल की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो दीज हार्मोन्स आर वेरी एसेंशियल किसके लिए? फॉर सपोर्टिंग ऑफ फीटल ग्रोथ, second metabolic changes in mother and maintenance of pregnancy. We have just discussed that progesterone hormones is important, or it's play an important role during pregnancy or maintenance of pregnancy. Immediately after implantations, the inner cell mass in implantations morula stage पर होता है, और फर्टिलाइजेशंस के 7 डेज़ के बाद होता है। कितने डेज़ के बाद होता है? 7 डेज़ के बाद होता है, और नियर अबाउट उसमें मॉरुला स्टेज पर क्या होता है? इम्प्लांटेशंस होता है। सो आफ्टर द इमीडिएट आफ्टर द इम्प्लांटेशंस जो मॉरुला है एम्ब्रियो वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू होता है। क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होना शुरू होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है और सेल मास फॉर्म करता है, और अल्टीमेटली सेल मास क्या करेगा? जर्म्स लेयर को फॉर्म करेगा। तो सेल मास का वर्क क्या है? जर्म्स लेयर को देना है ना। सेल मास क्या करेगा? इट्स प्रोड्यूस जर्म्स लेयर। जर्म्स लेयर स्टूडेंट, यू नो जर्म्स लेयर, जो प्राइमरी जर्म्स लेयर, सेकेंडरी जर्म्स लेयर, टर्शियरी जर्म्स लेयर, ह्यूमन बीइंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये आप लोगों ने लास्ट ईयर उसके समय पर क्लासिफिकेशन के समय पर जर्म्स लेयर रीड किया था। तो इसमें जर्म्स लेयर फॉर्म होना शुरू होती है। एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। मतलब सेल मास के चारों तरफ 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर स्टूडेंट? अ मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सबसे पहले कौन से सेल आएगी? आउटर लेयर, इनर आउटर लेयर जो अंदर के साइड से है, इनर एंड आउटर लेयर, इट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म नेम से समझ में आ रहा है ये आउटर लेयर होगी, बट इट इज इनर लेयर, अंदर से बाहर की ओर चल रहा है, इनर लेयर। देन दूसरी लेयर एंडोडर्म। एंडोडर्म जो आउटर लेयर है वो एंडोडर्म। क्लियर स्टूडेंट? एंड थर्ड नंबर पर मीजोडर्म डेवलप होगी। मीजोडर्म अमूमन हम लोग क्या रीड करते हैं? पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, देन एंडोडर्म। बट इसमें मीजोडर्म ये एक्टोडर्म एंडोडर्म के सेंटर बीच में होती है, बिटवीन, बट ये तीसरे नंबर पर डेवलप होती है। क्लियर स्टूडेंट? इट नीड्स टू मेंटेन हेयर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल। हाँ, अब ये जो सेल मास है जो हम लोगों ने अभी रीड किया था सेल मास, वो सेल मास क्या कर रहा है? एक कुछ स्पेशल टाइप की सेल डेवलप करता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम सेल। बेटा स्टेम सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी थेरेपी आजकल स्टेम सेल के थ्रू होती है। बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो स्टेम सेल का यूज़ करके जो है वो दूर होती है। ठीक है, स्टेम सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टोटोपोटेंसी
एक नेचर होता है, मतलब मीन्स सेल्फ जनरेट होने का। क्लियर स्टूडेंट? तो विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन। स्टेम सेल का क्या एक फीचर है कि वो सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को दे सकता है। स्टेम सेल आर दो सेल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, which have potency to give rise to all tissues and organ, which are major feature of embryonic development। और ये जो स्टेम सेल है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू वेरियस प्रेगनेंसी के वेरियस टाइम पीरियड पर अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट? अलग अलग टाइम पीरियड पर, मतलब जो फिटस का 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है उस पर कौन सा ऑर्गन डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, ये इनर सेल मास डिसाइड करता है। क्लियर? डू यू नो मैनी मंथ प्रेगनेंसी, और ह्यूमन बीइंग की प्रेगनेंसी मंथ कितना है? 9 मंथ। ठीक है? और डिफरेंट प्राइमेट्स और जो ऑस्ट्रोजिस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लाइक डॉग, एलिफेंट, कैट, इनकी प्रेगनेंसी पीरियड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है? इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo heart is formed। सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा है? हार्ट 1 month में। The first sign of growing fetus may be noticed by listening of the all। डॉक्टर्स fetus की हेल्थ कैसे कंफर्म करते हैं? To listen to listening हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट मंथ में भी डॉक्टर जो है इस फिटस की कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से होगा। इधर तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? नाउ सेकंड पॉइंट, द by the end of second month of pregnancy the fetus develop limb and digit। second month में क्या हो रहा है? limb means हाथ और पैर, limb और limbs and digits, fingers और उसकी जो है digits और जिसको हम लोग toes वगैरह डेवलप होना शुरू होता है। By the end of 12 week of first trimesters, मतलब first 3 month में most of the major organ system are formed। 3 month में क्या हो रहा है? मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो फिटस को पूरा क्या कर रहे हैं? अलाइव रख रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल्स लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी डेवलप है। मेल है कि फीमेल, ये 3rd मंथ में सेक्स डिटर्मिनेशंस क्लियर हो जाता है। बट इट इज़ व्हेन द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में क्या हो रहा है? 5th मंथ में हेयर और हेड क्लियर हो जाता है, हेड फॉर्म होता है। ठीक है? बाय द एंड ऑफ 24 वीक और सेकेंड मतलब 6 मंथ में क्या हो रहा है? बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, आईलिड्स फॉर्म हो जाती है। ठीक है? आईलिड्स, क्लियर स्टूडेंट? ठीक है? आईलिड्स सेपरेट होती है। तो दीज आर द some organs which is develop in different time period। okay student? now then by at the end of 9 month और जो 9 month में क्या हो रहा है? fetus is fully developed and ready for the deliver। clear student? now see this figure, it is human fetus with a uterus, प्लग ऑफ द म्यूकस इन सर्विक्स जो विजाइना के जस्ट ऊपर का पार्ट है, और बर्थ कैनॉल भी ये कहलाता है। ठीक है? इट इज़ प्लेजेंटल विलाई क्या कर रही है? ये देती है, ये एम्बेडेड होती है एंड इट
help help to get nutrition. क्लियर स्टूडेंट? ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, योक सेल है जिसमें कि फीटस को फूड में एनर्जी मिल रही है। ये एम्ब्रिकल कॉर्ड है जो कि क्या कर रही है, इसमें वेसल्स वगैरह होती हैं और ये फीटस से मदर की ब्लड वेसल्स से अटैच होती हैं। ये दिस वन इज एम्ब्रियो। तो दिस इज द कंप्लीट फिगर ऑफ ह्यूमन फीटस एंड यूट्रस. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ अबव पैराग्राफ. द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट. जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, एक जो कोरोनियर बिली आपने वर्ड पढ़ा ना, उसके साथ कुछ और मसल्स टिश्यूज फॉर्म होते हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करते हैं. इट इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू इनर लेयर एंड आउटर लेयर. ठीक है. द कवर लेयर इज कॉल्ड कोरियन. जो आउटर इनर लेयर है, जो अभी वी जस्ट डिस्कस अबाउट इट, इट इज़ कॉल्ड एज कोरियन. जो कोरियन विली आप लोगों ने रीड किया है, ठीक है, विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम. ये विली से, ये एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है. द इंटीमेट कनेक्शंस इस्टेब्लिश बिटवीन द कोरियनिक विली एंड द यूटेराइन टिश्यूज फॉर्म आ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और एक वाइज भी ये डिफरेंट है और फंक्शन वाइज भी डिफरेंट है. इट इज़ कॉल्ड एज प्लेजेंटा. तो कभी कभी आता है व्हाट इज़ प्लेजेंटा. प्लेजेंटा क्या है, इट इज़ इंटीमेट कनेक्शंस इज इस्टेब्लिश बिटवीन द कोरियोनिक विली एंड द यूटेराइन टिश्यूज. इट्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट between the developing embryo and the mature maternal body. It is called placenta. Placenta क्या कर रही है, provide nutritions. Second, remove carbon dioxide. Third, it work as a endocrine tissues and produce several hormones like कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. अभी आप लोगों ने एक और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रीड किया हुआ है, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो थैलेमस से रिलीज हो रहा है. ठीक है. Human placental lactogens, estrogen, progesterone. Please learn all hormones which is useful or which is secret by placenta. ठीक है. और ये सब हार्मोन्स क्यों रिक्वायर्ड है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. द एम्ब्रिकल कॉर्ड्स कनेक्टेड प्लेजेंटा एंड एम्ब्रियो दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द सब्सटेंस टू अनफॉर्म एम्ब्रियो. एम्ब्रिकल कॉर्ड क्या है, जो प्लेजेंटा से कनेक्ट रहती है और एम्ब्रियो को हेल्प कर रही है किधर, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए. इनर सेल मास इट इज़ कनेक्टेड विथ 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. ये फर्स्ट प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड प्रोड्यूस हो रही है, ये थर्ड प्रोड्यूस हो रही है. और जो सेल मास है वो स्टेम सेल फॉर्म करता है. कुछ उसकी सेल स्टेम सेल होती हैं विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन. ये स्टेम सेल से क्या होता है, ये इसका यूज़ सम स्पेशल डिजीज़ को दूर करने के लिए होता है. यदि कोई प्लांटेशंस, ट्रांसप्लांटेशंस होना है किसी ऑर्गन का, तो स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है. आफ्टर 1 month हार्ट इज़ फॉर्म, सेकेंड मंथ लिम्ब एंड डिजिट्स इज फॉर्म, थर्ड मंथ ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म एंड हेयर एंड हेड फिटस मूवमेंट ऑब्जर्विंग 5th month. इस तरीके से इसका ये पूरा डेवलपमेंट होता है. नाउ यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कॉल मी और यू जस्ट राइट ऑल थिंग विद योर होमवर्क. आई विल सी. ठीक है. नाउ पार्ट्यूरेशंस और लैक्टेशन पीरियड. अभी आप लोगों ने 9th month तक का डेवलपमेंट रीड किया है कि 9th month के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि पूरा ऑर्गन सिस्टम पूरा फुली डेवलप हो गया है. नाउ parturations and lactation. Now first we will define this term, parturations. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestations. जो जितना गैस्ट्रेशंस पीरियड, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज गैस्ट्रेशंस पीरियड. तो जो 9 month का पीरियड है वो गैस्ट्रेशंस पीरियड है. एंड बिगरस contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsions or delivery of the fetus. The process of delivery of the fetus is called parturations.
parturition is induced by complex neuroendocrine mechanisms. ये प्रोसेस भी एक बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, दोनों के सिस्टम से ये हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स. द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशंस ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फीटस से, मदर की साइड से नहीं हो रहा है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फीटस से. एंड द प्लेजेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शंस रिफ्लेक्स. और उससे प्लेजेंटा इंड्यूस होता है, स्टिमुलेट होता है, जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है. तो डेवलप कहाँ से हुआ? ओरिजिन कहाँ से हुआ? एम्ब्रियो फीटस से. फीटस से प्लेजेंटा पे आया, प्लेजेंटा से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस पे आया. दिस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शंस रिफ्लेक्स. द ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. निकलने वाला हार्मोन्स क्या है? ऑक्सीटोसिन. ये ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा है? जो पार्ट्यूरेशंस पीरियड है, इस समय पर ये सीक्रेट होता है और इस प्रोसेस में हेल्प करता है, डिलीवर ऑफ बेबी. ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ये कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से निकल रहा है. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स. किसके ऊपर वर्क कर रहा है? ये यूटेराइन मसल्स पर. एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. और इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है. दिस इज अदर इट्स टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. और वो ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑक्सीटोसिन. कौन किस किस के बीच में रिफ्लेक्स क्रिएट हो रहा है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशंस. इट्स कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो रहा है. दिस लीड्स द एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल. और ये जो विग्रसली स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, ये एक्सपल्सन्स ऑफ बेबी आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. ठीक है. सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर द प्लेजेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड. और प्लेजेंटा से ही फिटस अटैच्ड है, तो प्लेजेंटा भी उसके साथ एक्सपेल हो रही है. क्लियर? ठीक है. और इस प्लेजेंटा को वो बाद में डॉक्टर्स उसको कट करके रख देते हैं, बट अब प्लेजेंटा का भी कुछ यूज़ हो रहा है. द मैमिलरी ग्लैंड्स. अब मैमिलरी ग्लैंड्स विच इज मेन ग्लैंड्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसका क्या काम हो रहा है? ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के समय ही इसमें भी चेंज आना शुरू होता है. एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क. और मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशंस. और जिस समय से उसमें मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है और जितने समय तक वो अपने बेबी को फीड कराता है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन पीरियड. ठीक है. और लैक्टेशन पीरियड क्या कर रहा है? इट्स हेल्प मदर टू फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी. द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम क्या टर्म दिया है? ये कोलेस्ट्रम. जो स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, बच्चे के बर्थ के साथ, वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम विच कंटेन several antibodies absolutely essential to develop resistance for newborn baby. Very important point. ये क्या है? ये हेल्पफुल है किसके लिए? बेबी के लिए, उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए. इम्यूनिटी इंक्रीज करता है. ठीक है. इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहा है. रेजिस्टेंस मीन्स इसको हम डेवलपिंग रेजिस्टेंस कर रहे हैं. और एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है. एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है. इसलिए कहा है कि फर्स्ट मदर फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट्स ग्रोइंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू ब्रिंगिंग अप हेल्थी बेबी. और अच्छे हेल्थी बेबी के लिए डॉक्टर्स भी मदर फीड को रिकमेंड करते हैं. अब पार्ट्यूरेशंस, ये सम पॉइंट्स है. पार्ट्यूरेशंस, the definitions of parturition.
the act of expelling and full terms fetus from mother uterus and of the gestation period is called partitions. Lactation period क्या है? Mammillary gland and female undergoes differentiate and start producing milk at the end of pregnancy is called lactations. जब तक मदर बच्चे को अपने फिटस को और न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराती है और मिल्क प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन. इट्स हेल्प मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. लैक्टेशन पीरियड का क्या बेनिफिट है? बेबी को फीड कराना. द मिल्क दैट कम आउट द ममिलरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग इनिशियल डे इज कॉल्ड colostrum. Thus, breastfeeding is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. So, student, today we have finished this chapter completely. This chapter in tomorrow lecture I will revise main points of this chapter. So, thank you, student. Have a nice day.